Interest and churning the thoughts as Manthan does every year, every month for every topic. So starting the session, I would just like to ask you one little question. That is, how many of you are interested in history? Almost everyone, not a question to ask. But how many of you know about the history of Nagpur? Very few hands. Okay, so just a little brief about Nagpur, since it is the event where we are celebrating history. Nagpur is fondly known as Orange City, all of us know. It has a story of becoming the Orange City which dates back to almost 250 years. And it is attributed to a Bhosle king of Nagpur. Srimant Raghuji II, the 5th Sena Sahib Subha, brought orange saplings from Aurangabad, that is in Bihar, and Sialkot, and planted them across Nagpur. That is how Nagpur became the Orange City. The city was founded by the Gond king Bakht Buland Shah of Deoghar and later became a part of Maratha Empire under the royal Bhosle dynasty. The British East India Company took over Nagpur in 19th century and made it the capital of central provinces and Bihar. In 1702, Bakht Buland Shah established modern Nagpur by joining 12 hamlets, but in 1960, Nagpur became a part of Maharashtra. Today, on Maharashtra Din, commemorates the formation of state of Maharashtra from division of Bombay state in 1960. Manthan welcomes you everyone today for yet another insightful session, Mathura, Itihas or Vivad. That is Mathura, the case for a temple. And in Nagpur for the very first time, the renowned historian Dr. Meenakshi Jain will guide us on this particular topic. Ma'am, we are honored to have you here on stage, and I request you to please take a seat. Meanwhile, I request Satish Ji Sarda, convener of Manthan Nagpur, to please welcome her on behalf of the entire city. We will welcome her with a shawl shrifar, a Bhagavad Gita, and a beautiful murti of Vitthal Rukmini. Vitthal is manifestation of God Vishnu or his avatar Krishna in Maharashtra, with his temple in Pandharpur where Varkaris visit on foot almost every year. Vithoba is depicted as someone who stands accompanied by his consort Rakhumayan or Rukmini. Yes. Speaking a little about Manthan, so we all know what Samudra Manthan is. Samudra Manthan was when churning of ocean of milk, one of the central events in the ever-continuing struggle between the Devas and Asuras. During this churning, Dhanvantri, the physician of gods, rose up out of the water, carrying in his hands the supreme treasure known as Amrita. Like Samudra Manthan, Manthan is a platform of youngsters in Nagpur where we aim to churn the thoughts on topics of national interest and producing Amrit for ourselves through our thoughts. I know that Dr. Meenakshi Jain is such a huge example for everyone. We're honored to have her today, but introducing herself, I feel that words are not enough, but yet here is a small brief introducing Dr. Meenakshi Jain.
She is a historian interested in cultural and religious developments in ancient and medieval India. Her recent publications include Flight of Deities and Rebirth of Temples, The Battle of Rama, Case of the Temple at Ayodhya, Rama and Ayodhya, and I'm sure many of you must have attended our session on Ayodhya by Dr. K.K. Mohammed, and we were then introduced to Ayodhya. Sati, Evangelicals, Baptist Missionaries and Changing Colonial Discourse, Vasudeva Krishnan and Mathura, on which she will be speaking today. In 2020, she was awarded the Padma Shri by Government of India, and again, I know saying it number of times does not make it something that we are not that we are saying it by heart, but we are truly honored to have her here and to tell us about Mathura more. So the stage is all yours, ma'am, and we would all be patient listeners. Please ensure that your mobile phones are on silent. And here's an insight, a peek into the history and effort by Manthan to bring forth the renowned historian Dr. Meenakshi Jain, and the stage is all yours. Thank you. Namaskar. This is my first visit to Nagpur. मैं आभारी हूँ, मंथन ने मुझे बुलाया और आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए मेरी बात को सुनने के लिए। मैं एक इतिहासकार हूँ, तो जो भी मैं आपको कहूँगी, मैं आपको सबूत पेश करूँगी। उसके बाद आप मेरी बात को स्वीकार करें या ना करें, वो निर्णय आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अब क्या है कि जो कृष्ण के भक्त हैं, उनको इतिहासकारों के विवादों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो कृष्ण की पूजा उतनी ही श्रद्धा से करेंगे चाहे इतिहासकार कुछ भी करें। लेकिन इतिहासकार जो कहते हैं उसका क्या महत्व है? अगर हमारे से हमारा एक पवित्र स्थान छीना गया और हम न्यायालय जाते हैं कि हमारे को वो स्थान वापस चाहिए, तो न्यायालय कहेगी हमको सबूत। तो इसलिए सबूत पेश करना इतिहासकार का कर्तव्य है। सच्चे सबूत पेश करना परम धर्म है उसका। और जैसे मैंने कहा, कृष्ण भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतिहास सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा कृष्ण के प्रति उतनी ही रही। लेकिन तब भी ये सबूत मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, क्योंकि अयोध्या के बाद दो और स्थान जो बहुत महत्वपूर्ण है हिंदू समाज के लिए, वो है काशी और मथुरा। मैं ये नहीं कह रही कि उसके ऊपर हमको युद्ध करना है, वो क्या रास्ता अपनाया जाएगा उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो मैं जानकारी मथुरा और कृष्ण के बारे में पेश करूंगी, मेरे को यकीन है आप सबको वो बहुत दिलचस्प लगेगा। अब ये कहानी कब शुरू होती है? ये कहानी लगभग 100 वर्ष पहले शुरू होती है, जब कुछ इतिहासकार उन्होंने सोचा कि भारत के जो संस्कृत में कुछ ग्रंथ हैं उनका इंग्लिश में अनुवाद करें। तो जैसे कि ऋग्वेद वगैरह का उन्होंने अनुवाद किया, तो उसी समय उन्होंने छांदोग्य उपनिषद का ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में। अब वो ट्रांसलेशन जो अनुवाद उन्होंने अंग्रेजी में किया, उनका उद्देश्य ये था कि हम जाने कि इस ग्रंथ में धर्म के बारे में क्या लिखा है। अगर आप ये जरा बाद में ले लें तो मेरे को ठीक है। अच्छा, तो छांदोग्य उपनिषद जब उन्होंने ट्रांसलेट करना शुरू किया, तो वहां पर उन्होंने 2 वाक्य लिखे और उसमें लिखा था कि देव की पुत्र कृष्ण ने इस गुरु से शिक्षा ली, और क्या शिक्षा ली वो भी उसमें लिखा था। तो ये जो इंग्लिश में इसका अनुवाद कर रहे थे, ये हैरान हो गए कि देव की पुत्र कृष्ण
तो हमारे इतिहास में एक ही है, तो कोई और देव के पुत्र है नहीं। और फिर उन्होंने देखा कि देव के पुत्र कृष्ण ने अपने गुरु से जो शिक्षा ली वो ही शिक्षा उन्होंने गीता में उपदेश दी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये जो ट्रांसलेट कर रहे थे ये कृष्ण के बारे में खोजने नहीं निकले थे, ये एक ग्रंथ का इंग्लिश में अनुवाद कर रहे थे, वहां पर इनको देव के पुत्र कृष्ण का नाम देखा। तो ये पहला संस्कृत का ग्रंथ है जिसमें हम देव के पुत्र कृष्ण का नाम सुनते हैं। और देव के पुत्र कृष्ण कोई और हमारे साहित्य में, संस्कृति में, धर्म में कोई और नहीं। उसके बाद पाणिनि, हमने सबने पाणिनि का नाम सुना है, वो प्रसिद्ध संस्कृत के उन्होंने ग्रामर के ऊपर लिखा था, तो पाणिनि जिक्र करते हैं। और पाणिनि के बाद पतंजलि। पतंजलि ने जो पाणिनि जो रूल्स ऑफ ग्रामर लिखे थे उनको वो एक्सप्लेन करते थे। तो पतंजलि बोलते हैं कि ग्रामर का रूल ये है कि अगर आप दो व्यक्तियों का नाम ले रहे हैं तो पहला आप जो छोटा नाम है उसको लेंगे और उसके बाद दूसरा लंबा नाम, जैसे कि गीता और मीनाक्षी, क्योंकि गीता छोटा है तो पहले आप गीता और उसके बाद मीनाक्षी। लेकिन वो कहते हैं इस ग्रामर के रूल का एक एक्सेप्शन है, एक केस है जिसमें ये रूल नहीं अप्लाई किया जाएगा, और वो है वासुदेव और अर्जुन। वो कहते हैं कि वासुदेव और अर्जुन जब आप इनका जिक्र करते हैं, वासुदेव का नाम आप पहले लेंगे। क्यों पहले लेंगे? वो कहते हैं क्योंकि वासुदेव पूजनीय है। तो ये वासुदेव और अर्जुन का पाणिनि और पतंजलि के टाइम हमारे को जिक्र होता है। और मेगास्थनीज एक एम्बेसडर थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए, और वो अपना उन्होंने ग्रंथ लिखा है जब भारत आए, और वो कहते हैं मथुरा और गोकुल ये कृष्ण के शहर हैं। और ये कॉमन एरा से 300 वर्ष पहले मिले हैं। अब ये जो इंस्क्रिप्शन या शिलालेख है, इसके बारे में कोई वामपंथी इतिहासकार ये नहीं कह सकता कि हिंदुत्व इतिहासकार की खोज है, ये फॉर्जरी है, और या ये हिंदुत्व के लोगों ने यहाँ पे प्लांट किए हैं। क्योंकि ये जो सारे इंस्क्रिप्शंस हैं ये ASI के ऑफिशियल जर्नल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल जर्नल्स थे उनमें इन्होंने अध्ययन किया है, इनको ट्रांसलेट किया है, और ये 50-60 साल पहले पब्लिश हुए हैं। तो अगर वामपंथियों ने 50-60 साल कोई आपत्ति नहीं जताई तो अब ये कैसे कर सकते? और ये जैसे मैंने कहा कि ये तो भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार R.P. चांदा जैसे लोगों ने ट्रांसलेट किया, और वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट। तो इसका वर्तमान जो संघर्ष है, ये जो विवाद है, उससे कोई लेना देना नहीं। अब क्या होता है कि भारत का इतिहास एक नई मोड़ लेता है। हम सब ने महमूद गजनवी का नाम सुना है। महमूद गजनवी ने भारत पर बहुत बार आक्रमण किए हैं, उसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर्स में बात कर सकते हैं अगर आप चाहें, सोमनाथ वगैरह। लेकिन क्योंकि हम मथुरा पे बात कर रहे हैं तो मथुरा पर महमूद गजनवी ने क्या किया उसके बारे में बात करेंगे। महमूद गजनवी ने 1017 पर मथुरा पर आक्रमण किया, और जो उनके इतिहासकार थे कुतुबी, वो महमूद गजनवी के साथ आए और उन्होंने पहले विवरण किया कि मथुरा के मंदिर जो है, हम तो सोच भी नहीं सकते कि कोई मनुष्य उनको बना सकता है। इनकी कारीगरी, इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, ऐसा लगता है कि भगवान ने स्वयं आके ये मंदिर बनाए।
पूरा उन्होंने डिटेल में, सेंट्रल चौक में ये बड़ा मंदिर था, मूर्तियां ऐसी थी, पूरा विवरण हमारे पास पुतली का है जो उस समय मौजूद थे जब महमूद गजनवी आए। उसके बाद हमको पता है कि महमूद गजनवी ने मंदिर तोड़ दिया। अब मंदिर तोड़ दिए, इसके बाद हमको कैसे पता चले कि वहां के लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, क्या किया उन्होंने? क्योंकि देखिए, जब मंदिर तोड़े पूरा शहर तहस नहस हो गया। कोई अमीर लोग नहीं बचे थे, कोई बड़े राजा नहीं बचे थे, तो हमको पता नहीं चलता कि वहां पे क्या हुआ। लेकिन एक और शिलालेख मिलता है हमको 11वीं शताब्दी का, और ये शिलालेख एक आदमी का है जिसका नाम है झज्जा। तो ये झज्जा बोलता है कि मैंने कृष्ण मंदिर को दोबारा बनाया है। अब हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये शिलालेख नहीं मिलता हमको, तो हमको पता ही नहीं चलता कि मंदिर दोबारा बनाया है। और क्योंकि झज्जा के बारे में हमको कोई याद नहीं है कहीं और से, तो अगर ये शिलालेख नहीं मिलता तो हम को ये जानकारी नहीं होती कि इस देश में एक महान व्यक्ति पैदा हुए थे जिनके मस्तिष्क में ये था कि भाई यहाँ पर कृष्ण मंदिर तोड़ा गया है, और तोड़ने के लगभग 100 वर्ष के बाद वो एक मंदिर बनाते हैं। ऑब्वियसली वो जो मंदिर बनाते हैं वो विशाल मंदिर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ना उनके पास सत्ता था ना उनके पास पैसे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत की और मंदिर कृष्ण के नाम पर बनाया। और ये जो कहानी है कि मंदिर अरब ने, तुर्कों ने तोड़े, और फिर हिंदू समाज के छोटे छोटे लोगों ने, राजाओं, छोटे छोटे लोगों ने उन मंदिरों को दोबारा बनाया। ये कहानी पूरे भारत में आपको मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही कि अगर विशाल मंदिर तोड़ा है तो एक विशाल मंदिर बनेगा, विशाल मंदिर तोड़ा लेकिन छोटा सा मंदिर बनेगा। लेकिन वो याद कि हमारे पूर्वज भूल नहीं गए कि भाई यहाँ पे हमारे मंदिर था, और वो उसी भगवान के नाम पे एक मंदिर बनाते हैं। तो ये जो झज्जा ने मंदिर बनाया, झज्जा के बारे में हमको और कुछ नहीं पता, क्योंकि कोई इतिहास नहीं है उस समय का और कोई अकाउंट नहीं है। सिर्फ इस शिलालेख की वजह से हम जानते हैं कि एक व्यक्ति था झज्जा जिसने कृष्ण मंदिर को दोबारा बनाया महमूद गजनवी के तोड़ने के 100 साल बाद। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास पर्शियन इतिहासकार आते हैं, क्योंकि अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी, तो पर्शियन और अरेबिक में लिखने के बहुत इतिहासकार मिलते हैं। तो इनसे हमको पता चलता है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोधी ने भी मंदिर पर आक्रमण किया। अब लेकिन हमको ये जानकारी नहीं है कि वो मंदिर तोड़ा, झज्जा का मंदिर टूटा, या उसको थोड़ा सा तोड़ा और लोगों ने उसकी मरम्मत करके वहां पर पूजा जारी की। लेकिन ये पर्शियन अकाउंट जो है मध्यकाल की, ये बताती हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोधी ने भी मथुरा पर आक्रमण किया। ये जानकारी हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो चाहे उनके पास सत्ता नहीं थी, ऑर्डिनरी लोग थे, लेकिन वो अपनी संस्कृति और सभ्यता से कितने जुड़े हुए थे। उनको किसी टीचर को आगे बताना नहीं पड़ा कि भाई यहाँ पे मंदिर था, तुमको दोबारा बनाना चाहिए। जैसे आजकल ऐसे कितने लोग मिलेंगे, है ना? तो हम तो भूल ही गए कि हमारे कितने मंदिर थे। मैं इतिहासकार हूँ, लेकिन पूरे भारत में कितने मंदिर टूटे मेरे को नहीं पता।
लेकिन उस समय के उस इलाकों के लोगों को पता था कि यहाँ पर एक हमारा पवित्र स्थान था, यहाँ पे मंदिर था, ये टूटा। तो अब झज्जा का मंदिर टूटा या रिपेयर किया गया ये हमको नहीं पता, लेकिन पर्शियन अकाउंट्स बताते हैं कि इन तीनों ने मंदिर पर आक्रमण किया। अब हम आते हैं अकबर के समय। तो अकबर के समय एक जेजुइट पादरी भारत आते हैं और वो मथुरा जाते हैं और उनकी अकाउंट अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो चुकी है और इंटरनेट पे आप सभी उसको पढ़ सकते हैं। फादर मॉन्सोराट। ये आजकल इंटरनेट का बहुत फायदा है कि आपको इतिहास का होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ये जो नॉलेज है, ये जो ग्रंथ हैं, ये आपको फ्री इंटरनेट पे मिलते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। जो मैं कह रही हूँ उसको सत्य नहीं मानिए, आप अपने आप क्रॉस चेक करिए, ठीक है। तो ये फादर मॉन्सोराट ये जाते हैं मथुरा और ये अपने अकाउंट लिखते हैं और ये कहते हैं कि मथुरा में कोई मंदिर नहीं रहा, केवल एक मंदिर बचा है और वो उसका विवरण करते हैं। और वो एक और बात लिखते हैं कि जो इनके मंदिर टूटते गए थे, ये लोग इतने पागल हैं, इतने बेवकूफ हैं, उन टोटल मंदिरों से कोई भी मूर्ति या कुछ उठा लेते हैं और उसके लिए एक छोटी सी बिल्डिंग बनाते हैं, उन मंदिरों पे पूजा जारी रखते हैं। तो ये एक विदेशी मथुरा जाके लिख रहा है कि जो खंडित मंदिर थे, जो टूटे मंदिर थे, मथुरा के आसपास के निवासी उनमें से कुछ भी उठाकर उसकी छोटी सी इमारत बनाकर वहां पे पूजा करते हैं। तो अब आप देखिए कि कितना उत्तरी भारत में परिवर्तन हो गया था कि आपको कोई हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट टेम्पल वहां पे नहीं दिखता था। आज जब हम देखते हैं भारत को, उत्तरी भारत को, क्योंकि दक्षिण की अलग कहानी है, वो हम किसी और वक्त करेंगे। तो ये उत्तरी भारत ये 18वीं शताब्दी में दोबारा बना है। बनारस ये तो मराठास की देन है, इसके पहले तो कुछ बचा ही नहीं था वहां पर। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये हालत थी। लेकिन आप सोचते हैं कि हिंदू समाज, ऑर्डिनरी नागरिक या धार्मिक नेता चुप बैठे थे? नहीं। आंध्रा से एक व्यक्ति मथुरा जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि यहाँ पर मुझे होना है, क्योंकि हम इस भूमि को ऐसे नहीं छोड़ सकते। और उसके बाद निम्बरका इनका नाम था। उसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं, माधवाचार्य, और वो एक कृष्ण की मूर्ति वहां पर स्थापित करते हैं, जबकि यहाँ पर हिंदू शासन तो कोई रहा नहीं। लेकिन तब भी ये धार्मिक नेता ने कितनी हिम्मत दिखा। वल्लभाचार्य, चाणक्य, चैतन्य, ये सब लोग क्या था इनके पास? इनके पास अपना विश्वास था, अपने धर्म की शक्ति थी। कोई हथियार नहीं थे, कोई राजा नहीं था इनके पीछे, लेकिन ये आए और सारे मथुरा के इसको धार्मिक दोबारा बनाने की कोशिश की। कृष्ण के लीला स्थल कौन से हैं, राधा को कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते थे, तो ये सारा जो मथुरा, वृंदावन, ये सारा जो नजारा था, इन्होंने दोबारा उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की। तो ये एक और कहानी है, लेकिन टू कम टू माय मेन स्टोरी, वो हम क्वेश्चन आंसर में डिस्कस कर सकते हैं। अब मेन कहानी क्या है? अब मेन कहानी ये है कि 16वीं शताब्दी में एक राजकुमार था, राजा नहीं था, राजकुमार था, मतलब उसके पिता राजा थे। एक छोटी सी शहर ओरछा,
तो ये राजकुमार, और उस टाइम मुगल बादशाह अकबर थे और उनका राजकुमार सलीम या जहांगीर। तो सलीम ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर लिया था और एक अगली दरबार अपनी सेपरेट बना ली थी। तो ये इस ओरछा के राजकुमार वीर सिंह को संदेश भेजते हैं कि तुम्हारे इलाके से मेरे पिता के घनिष्ठ मित्र अबुल फजल यहाँ से गुजरेंगे, अगर तुम उनका सिर मेरे को भेज दो तो जब मैं बादशाह बनूंगा मैं तुमको ओरछा का बादशाह बना दूंगा। तो कहता ठीक है। वीर सिंह जब अबुल फजल वहां से गुजर रहे थे उनका काट देते हैं सिर और सलीम को भेज देते हैं। जब सलीम मुगल बादशाह बनता है अकबर के देहांत के बाद, तो वो वीर सिंह को ओरछा का नरेश बना। अब देखिए ओरछा कितनी दूर है और मथुरा का है, और उस समय कोई प्लेन होते नहीं थे, ना ट्रेन होती थी। वीर सिंह ओरछा का राजा बन गया और सबसे पहला काम क्या करता है, मेरे को कृष्ण का मंदिर बनाना है मथुरा। तो वो इतना धन दौलत लगाता है, एक विशाल मंदिर कृष्ण का बनाता है मथुरा में। और जो उस समय विदेशी भारत आए वो उस मंदिर को जाके देखते हैं। जैसे फ्रांसीसी बर्नियर टेवर्नियर वो भारत आए, उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे और उन्होंने इस मंदिर का विवरण किया है कि कितना विशाल था और कितने मील दूर से इसको देख सकते थे लोग। इतना मतलब बहुत बहुत ब्यूटीफुल उन्होंने मंदिर बनाया। अब ये मंदिर का क्या हुआ, 1669 में औरंगजेब ने आदेश दिए कि सारे मंदिर टूटने चाहिए और 1670 में उन्होंने कहा विशेषकर मथुरा में कृष्ण का मंदिर। और क्योंकि मुगल राज को कागजी राज मानते हैं, हर कुछ जो होता था वहां पे लिखते थे, तो उस समय के इतिहासकार साकी मुस्तैद खान उन्होंने लिखा है कि जब वो आदेश पढ़ते हैं कि अकबर का, और वो कहते हैं कि जब मंदिर टूटने लगा, ये जो राजपूत राजा थे ये दंग रह गए कि ये जब मंदिर को टूटते हुए देखते हैं तो इनकी क्या हालत होती है, क्योंकि इतना विशाल मंदिर और उनके सामने उनके देवता का घर टूट रहा है। और फिर वो कहते हैं कि ये मूर्तियां थी ये औरंगजेब आगरा, उन्होंने कहा आगरा ले जाओ और जो मस्जिद है बेगम साहिबा की मस्जिद उसके सीढ़ियों के नीचे रखो ताकि जो भी नमाज पढ़ने जाएगा वो इन पर चढ़ के जाएगा। और साकी मुस्तैद खान के अलावा एक इटालियन भारत आए थे मेनुची, तो वो भी गवाह हैं जब मंदिर टूट रहा था। अब ये बहुत भयानक कहानी है, लेकिन अफसोस ये है कि ये भयानक कहानी यहाँ पर नहीं खत्म होती। हम सोचते हैं कि भाई औरंगजेब से बड़ा कट्टर मुसलमान कौन हो सकता है, लेकिन औरंगजेब के बाद 1757 में एक और भारत पर आक्रमण किया अफगानिस्तान से, उनका नाम था अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा पर आक्रमण किया और उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि हर जो काफिर का तुम सिर लाओगे मैं तुमको 5 रुपए दूंगा। 5 रुपए उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी। और सबसे हैरानगी की बात है कि मेरे को कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली के कैंप के एक व्यक्ति ने मथुरा वृंदावन पर जो आक्रमण हुआ उसका पूरा विवरण किया है और इसको
1911 में एक आईसीएस ऑफिसर थे, अंग्रेजी आईसीएस ऑफिसर विलियम अर्विन। विलियम अर्विन ने ये अकाउंट ट्रांसलेट की है और ये भी आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो वो बताता है कि जैसे एक गांव है, उसमें 200 बच्चों की लाशें देखी जिनका सिर नहीं था, और कहते हैं कि 5 रुपए पर हेड, तो कितने सैनिक, कितने सिर लेके आए, और जैसे कि प्रलय आ गई थी कि मतलब जब सिर कटता है तो कोई खून वगैरह तो बहेगा ना। तो वो जो डिस्क्रिप्शन है विलियम अर्विन की, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप इंटरनेट पे उसको पढ़िएगा कि ये सारे सबूत पब्लिक डोमेन में है, लेकिन हमको ये जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि हमको पता तो होना चाहिए कि अतीत में हमारे पूर्वजों ने हमारे धर्म का, हमारे धार्मिक क्षेत्रों का कैसे उन्होंने बचाव किया, कैसे अपनी जिंदगी दी उनको सुरक्षित रखने में, और बार बार आक्रमण है, बार बार वो बनाए जा रहे हैं। तो ये कहानी 1757। अब 1757 के बाद सबसे बड़ी घटना क्या होती है? 1770 में मराठा, आपको पता है उत्तर की तरफ बढ़ रहे थे, तो 1770 में मराठास बैटल ऑफ गोवर्धन जीत जाते हैं। जब मराठास बैटल ऑफ गोवर्धन जीतते हैं तो ये मथुरा वृंदावन एरिया उनके कंट्रोल में आ जाता है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि ये जो सारा एरिया है, सारा एरिया मतलब कटरा केशव देव, ये हम इसको नजूल लैंड घोषित करते हैं, ये गवर्नमेंट का है, ठीक है, ये कोई और नहीं कह सकता कि ये हमारा है। तो जब ये मराठास आते हैं मथुरा में 1770 में और उसको नजूल लैंड क्रिएट करते हैं, तो ईदगाह के जो मौलवी हैं वो जगह छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अब हमारा यहाँ पे कोई रोल नहीं है, अब मराठास आ गए तो हम ये स्थान छोड़कर कहीं और रोटी रोजी का बंदोबस्त करेंगे। 1770 में मौलवीज ईदगाह को छोड़कर चले जाते हैं। अब 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी मराठास को यहाँ से हटा देती है और वो मथुरा और इसके आसपास के इलाके के मालिक बन जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भी मराठास की नीति को जारी रखती है, वो कहती है कि ये नजूल लैंड है। तो ये कहानी 1803 तक है। अब क्या है कि 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी कटरा केशव देव की नीलामी करती है, ऑक्शन, और इस ऑक्शन में राजा पटनीमल ऑफ बनारस, वो बैंकर थे, बनारस के थे, तो उन्होंने कहा कि मैं खरीदने को तैयार हूं, और राजा पटनीमल के को ये मिल जाते हैं। तो कटरा केशव देव के मालिक अब ब्रिटिश रेवेन्यू और जुडिशियल रिकॉर्ड्स में मालिक हैं राजा पटनीमल। और जब मैं कटरा केशव देव बोलती हूँ, मेरा मतलब हमेशा है 13.37 एकर्स। वो था कटरा केशव देव, ये कटरा केशव देव 13.37 एकर्स, इसका कभी विभाजन नहीं हुआ। राजा पटनीमल इसके मालिक थे, और राजा पटनीमल के बाद उनके उत्तराधिकारी ब्रिटिश रेवेन्यू और जुडिशियल रिकॉर्ड्स में लिस्ट होते हैं एज द न्यू ओनर्स। तो पटनीमल के परिवार में भी ये 13.37 एकर्स का विभाजन नहीं होता, ठीक है। अब क्या होता है, अंग्रेज आ गए हैं और राजा पटनीमल मालिक हो गए। अब कहां से कब ईदगाह पार्टी वापस आती है इसके बारे में हमको पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी पुस्तक में 1815 से 1947 तक मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो ईदगाह पार्टी ने
राजा पटनीमल और उनके परिवार के खिलाफ केसेस प्रेजेंट किए, वो मैंने इसमें पेश किए हैं। अब वो ईदगाह पार्टी कब आती है, कैसे आती है, हमको तो पता नहीं, क्योंकि 1770 में मराठास के बाद वो चले गए थे। अब वो क्या कहते हैं अंग्रेजी कोर्ट्स में, मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो कहते हैं कि इस जगह का नाम तो कटरा केशव देव कभी था ही नहीं। अंग्रेजी कोर्ट में वो कहते हैं इस स्थान का नाम कटरा केशव देव कभी था नहीं। कोर्ट ने पूछा क्या नाम था, उन्होंने कहा इस जगह का नाम, इस स्थान का नाम कटरा ईदगाह था। तो कोर्ट ने कहा कि आप पेश कीजिए, सबूत पेश कीजिए। वो सबूत नहीं पेश करे। फिर उन्होंने एक से एक झूठ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे, और जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको फॉर्जरी भी करनी शुरू की। एक चीज काट के ऊपर, जैसे मतलब कि बहुत सारे उदाहरण हैं जबकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को फॉल्सिफाई करना शुरू किया। और एक समय में कोर्ट ने देखा कि ये धीरे धीरे कटरा केशव देव का जो भूमि है उसको और को बांट रहे हैं, मतलब कि अपने ग्रुप को वहां पर बिठाना चाह रहे हैं, तो इनलीगली वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा, ये मैंने लिखा है इसमें, कोर्ट ने कहा कि 1815 से जो भी केसेस आप कोर्ट में लाए हैं, हर केस को हमने बड़े ध्यान से पढ़ा है और हर केस में आपका झूठ हमने साबित किया है। तो एक जो हार्डन लिटिगेंट होता है, जिसकी आदत होती है कि भाई एक के बाद एक केस फाइल करो, तो आपकी मानसिकता वो है। तो इसमें आपका कोई शेयर नहीं है। और ईदगाह पार्टी 1815 से 1947 तक कोई भी केस ब्रिटिश कोर्ट्स में नहीं जीत पाए, अच्छा एक भी केस। इसका मतलब है कि टेम्पल पार्टी के पास इतना स्ट्रॉन्ग केस था, इतना सबूत था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि 1944 में राजा पटनीमल के जो उत्तराधिकारी थे वो कहते हैं कि हमारे ऊपर कर्ज है, कर्ज बहुत छोटा सा 13,000 रुपए का। तो वो कहते हैं कि लेकिन हम ये कर्ज पूरा नहीं करेंगे। तो वो जुगल किशोर बिरला को बोलते हैं कि आप ये कर्ज हमारा चुका दीजिए और ये 13 पॉइंट पूरा कटरा केशव देव हम आपको दे देंगे। तो 1944 में सेठ जुगल किशोर बिरला कटरा केशव देव पूरा 13.37 एकड़ खरीदते हैं और उनके नाम पे ट्रांसफर होता है। 1951 में सेठ जुगल किशोर बिरला एक ट्रस्ट बनाते हैं। ट्रस्ट में मदन मोहन मालवीय और 2 और लोग हैं, वरिष्ठ लोग, और वो कहते हैं कि ट्रस्ट का एक उद्देश्य है कटरा केशव देव पे एक विशाल मंदिर बनाना चाहिए केशव के लिए, ये ट्रस्ट का उद्देश्य। अब एक दो चीजें मैं कहना चाहूंगी। ये बिफोर आई कम टू द नेक्स्ट स्टेज, अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। तो वो अपने खुदाई के काम के सिलसिले में मथुरा बहुत बार आए और उन्होंने 4-5 रिपोर्ट मथुरा के बारे में लिखी है। और उन्होंने कहा कि ये जो मंदिर है यहाँ पर, ये जो नींव बची है उसकी नपाई वगैरह मैंने की है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़े मंदिरों में से एक था। ये अलेक्जेंडर कनिंघम की ऑफिशियल रिपोर्ट है। अलेक्जेंडर कनिंघम ये आपके और मेरे पक्ष वाले थे नहीं, वो तो बहुत पहले गुजर गए,
तो उन्होंने जो अपनी सर्वे रिपोर्ट्स लिखी है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में पब्लिश हुई है, उनको मैंने भी इस्तेमाल किया है। तो वो दूसरी बात लिखते हैं कि जो ये ईदगाह है ये तो अब खंडर है। आप ध्यान से सुनिए, वो लिखते हैं कि ईदगाह अब खंडर है और इसको तो यहाँ पे हमको खुदाई करनी चाहिए क्योंकि इमारत तो खंडर है। तो ये अलेक्जेंडर कनिंग है और उस समय मथुरा के जो ऑफिसर थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एफ.एस. ग्राउस ने एक किताब लिखी है मथुरा, अगेन इट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। और उस किताब में मथुरा की एक एक इमारत, एक एक नदी, उसका पूरा विवरण किया है। और वो लिखते हैं कि पूतना कुंड उसके बारे में लिखते हैं। तो ये लोग कोई इंडियन हिस्ट्री के कोई रिलीजन के ऊपर कोई स्पेशलिस्ट नहीं थे, जो इनको दिखता था वो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से लिखा। तो एफ.एस. ग्राउस की किताब जो मथुरा पर है वो आपको पढ़नी चाहिए, वो फ्रीली अवेलेबल है। और कनिंघम की रिपोर्ट्स, जो कनिंघम लिखते हैं कि मंदिर शायद भारत का सबसे बड़ा मंदिर था और वो लिखते हैं कि ईदगाह अब खंडर है। ठीक है, तो अब हम कहाँ पहुंचे? हम पहुंचे कि 1951 में एक ट्रस्ट बना दिया है जुगल किशोर बिरला ने, जिसमें मदन मोहन मालवीय ट्रस्टी है और उनका उद्देश्य है एक विशाल टेंपल बनाना। तो अब तक तो सारी कहानी हमको समझ आ रही थी क्योंकि मंदिर था, झज्जा ने उसको दोबारा बनाया, फिर मोन्सराट आता है, फिर वीर सिंह बुंदेला ने विशाल मंदिर बनाया, औरंगजेब ने तोड़ा और अहमद शाह अब्दाली ने वहां पर कितना जुल्म किया। और उसके बाद मराठास आए, अंग्रेज आए, फिर राजा पट्टीवाल, उनके अधिकार, उनके बच्चों, ये सब हमको स्पष्ट है। ये अब कहानी एक नया ट्विस्ट लेती है 1968 में। 1968 में आप सोचेंगे कि भारत आजाद हो गया, तब 1968 में मथुरा में क्या ट्विस्ट आ सकता है? तो आप हैरान होंगे, मैं तो हैरान थी कि 1968 में एक नई संस्था सामने आती है। जो जुगल किशोर बिरला ने ट्रस्ट बनाया था वो श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट। अब एक 1968 में एक नई संस्था सामने आती है, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ। अब ये सेवा संघ कौन है? 1968 में कोर्ट में इस मामले पर प्रश्न उठे, इंडिपेंडेंट इंडिया की कोर्ट्स में। तो कोर्ट्स ने कहा कि सेवा संघ तो कुछ है नहीं, हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो जुगल किशोर बिरला के बने हुए ट्रस्ट के बारे में है, जन्मभूमि ट्रस्ट, इस सेवा संघ हम जानते हैं। लेकिन 1968 में इस सेवा संघ ने कटरा केशव देव के 3 एकड़ जमीन ईदगाह पार्टी को दे दी। अब 1000 साल से तो हम लड़ रहे हैं उस कटरा केशव देव के लिए, ना कभी उसका विभाजन हुआ, ना कभी कुछ हुआ। 1968 में आजाद भारत में एक कौन सी संस्था है, सेवा संघ, जो कटरा केशव देव के 3 एकड़ जमीन ईदगाह पार्टी को देती है? और ईदगाह पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों के शासनकाल में कोर्ट में एक भी केस नहीं जीत पाई थी। तो अब ये जो मैं अभी तक जो मैंने आपसे बात की, 2 मिनट, हाँ ओके, जस्ट अब 2 मिनट में खत्म कर रही हूँ। अभी तक जो मैंने आपसे बात की उस सबका सबूत मेरे पास है, लेकिन 1968 से संबंधित सबूत मेरे पास नहीं है। वो क्योंकि कोर्ट में एक जैन ने फाइल किया है ये केस, उन्होंने कहा है 1968 में, बस 2 मिनट में मैं खत्म कर रही हूँ, बहुत टाइम ले लिया, सॉरी। तो वो कहते हैं कि 1968 में ये सेवा संघ ने 3 एकड़ जमीन
दे दी। अब वो उनका कहना है कि 1968 में केंद्रीय सरकार माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। केंद्र में जो सरकार थी उसके पास बहुमत नहीं थी और उसको आउटसाइड सपोर्ट चाहिए थी सत्ता में रहने के लिए, और उसने दो पार्टीज के साथ समझौता किया अपनी सरकार बचाने के लिए। एक थी मुस्लिम लीग और दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो मुस्लिम लीग को तो हम समझ सकते हैं क्या दिया होगा, ठीक है, और कम्युनिस्ट को बाद में एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी जिसका अभी तक हम भुगत रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें ये भी एक लेसन है कि भाई सत्ता का लोभ क्या होता है, तो हम भी समझ सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं उसके बारे में। सो नाउ द लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज दिस क्वेश्चन, जो प्रेजेंट ईदगाह है वो कब बना था? जो 3 एकड़ 1968 में इनको दिया उस जमीन पे बना है क्या? क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा था ईदगाह खंडर है, तो ये ईदगाह 3 एकड़ जो कटरा केशव देव थे, केशव देव का जो जमीन थे उसमें बनी है क्या? अगर उसमें बनी है तो ये रिसेंट बिल्डिंग है, ठीक है। और अगर ये 1968 में बनी है तो पीपल्स वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 डज नॉट अप्लाई टू इट, बिकॉज़ पीपल्स वर्शिप एक्ट जब अयोध्या का मामला था तब केंद्र सरकार ने पास किया था कि जो बिल्डिंग, क्योंकि अयोध्या का इतना बड़ा मामला हो गया, तो जो बिल्डिंग 1947 में मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा। लेकिन अगर ये 1968 में बना है तो पीपल्स वर्शिप एक्ट डजंट अप्लाई टू इट। तो यहां पर मैं खत्म करूंगी, क्योंकि अब वोट क्या फैसला लेती है, सुनवाई करती है नहीं करती। अब राम जन्मभूमि की तरह 70 साल लगाएगी सुनवाई करने में, तो ना मैं ना आप तो बचेंगे नहीं, शायद यंग जनरेशन बचेगी। तो यू नो, सो थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am, for a wonderful session. But our session does not end here, so we will be taking another round, that is question answer session. I request Rohan Parekh ji to please conduct the question answer session, and also I request कि जिन लोगों के भी कुछ प्रश्न हैं वो अपना पहले तो नाम बताएंगे, एक small intro देंगे, and do not ask to ask the questions to the point. Do not build a background around it. So please keep your questions short and just give your name and ask for it. Thank you. Handing over the mic to Rohan ji, who will be conducting the question answer session. नमस्कार, प्रश्नोत्तर सत्र प्रारंभ करेंगे। सभी से निवेदन है जिनको भी प्रश्न पूछना है अपना हाथ रेज करें और शुरू में 1-2 लाइन में अपना परिचय दें और प्रश्न जो है संक्षिप्त रखें और टू द पॉइंट रखें। नमस्ते, मेरा नाम शिखर वर्मा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र पढ़ने जाऊंगा अगले साल। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने गजनी का जिक्र किया, गजनी ने मथुरा में आक्रमण किया था। गजनी ने वैसे 17 बार सोमनाथ में भी आक्रमण किया, जो कि शिव भगवान का ज्योतिर्लिंग है। और उस समय राजराजेंद्र चोला बहुत पावरफुल थे। राजपूत और बाकी राजाओं का तुम्हें समझ में आता है, राजराजेंद्र चोला इंडोनेशिया की साइड बहुत एक्सपेंशन कर रहे थे। तो जब 17 बार जब गजनी ने आक्रमण किया तो उन्होंने वहां पे क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि राजराजेंद्र चोला बहुत बड़े शिव भक्त थे। मथुरा में उन्होंने कुछ नहीं किया, समझ में आता है। और इससे हिंदू सोच भी हमें समझ में आती है कि जैसे 1968 में मस्जिद बन गई और हिंदू कुछ नहीं कर पाए, तो वैसे जब इतने बड़े राजा हैं वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करते जा रहे हैं और उन्होंने सोमनाथ पे ध्यान नहीं दिया, ऐसा क्यों? नहीं, सोमनाथ पे चोला ने नहीं ध्यान दिया, तो लेकिन वो गजनवी के इन्वेशन से पहले भी उत्तर भारत में नहीं आए, ठीक है ना। लेकिन उत्तर भारत के छोटे छोटे राजाओं ने महमूद गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण को रोकने का मैं 2 मिनट में उदाहरण देना चाहती हूँ। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर पहली बार आक्रमण किया तो
जो शासक थे वहाँ के सरंजीत रोलर, उन्होंने जैसे महमूद गजनवी वापस लौटे, उन्होंने सोमनाथ को बनाना शुरू किया और सोमनाथ को हिंदू राजाओं ने बार बार बनाया। बट आई वांट टू गिव यू 2 एग्जांपल्स मैं देना चाहती हूँ। एक, उस समय की पर्शियन इतिहास लिखा गया है, ठीक है, तो वो हिंदू के पक्ष में तो नहीं है। तो पर्शियन इतिहासकार लिखता है कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया तो वो वापस जाना चाहते थे और उन्होंने कहा कि मेरे को कोई गाइड चाहिए जो मेरे को छोटा रास्ता दिखाए गजनी पहुंचने के लिए। तो एक व्यक्ति वॉलंटियर करता है कि मेरे को रास्ता पता है और मैं आपको ले जाऊंगा। तो उसको हायर करते हैं। एक दिन के मार्च के बाद महमूद गजनवी बोलते हैं उनको कि आप यहाँ पे जो भी तालाब है, हमारे को पानी की जरूरत है, तो आप हमको वहां पे ले जाइए। और ये आदमी क्या कहता है? कहता है मैं आपको जानबूझकर इस रास्ते से लाया जहाँ पे आपको कोई पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने मेरे देवता के साथ ऐसा किया तो मैं ये बदला ले रहा हूँ। ये कोई हिंदू ग्रंथ में नहीं लिखा, ये पर्शियन अकाउंट है, पर्शियन इतिहासकार ने। और एक और उदाहरण देती हूँ। Soon after that, अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया और एक राजस्थान में छोटा सा शहर है, किंगडम है जलौर। अब पता नहीं जलौर, तो आप हैरान हो जाएंगे कि जलौर के राजा ने इतनी शक्तिशाली सेना से लड़ाई की और वो कहते हैं कि मैंने शिवलिंग को बचाया। लेकिन यहाँ कहानी नहीं खत्म होती। उनके ग्रैंडसन जब वो नदी पे बैठता है तो कहता है कि मेरे दादा ने तो इतना बड़ा काम किया, सोमनाथ के लिए लड़े, लेकिन मेरे बच्चों को कैसे पता चलेगा? तो वो अपने इतिहासकार, दरबार के इतिहासकार को बोलते हैं सोमनाथ को बचाने में जलौर राज्य का क्या रोल रहा है वो आप लिखो। और वो पुस्तक अभी भी अवेलेबल है, आप उसको जरूर पढ़िए, गान्हारण्य प्रबंध, ठीक है। वो कितने जोश से, उसको डर नहीं लगा कि मेरे को तो वो खत्म कर दे। And there were so many other people who fought महमूद गजनवी। चोला को आप एग्जाम्पल मत लीजिए, क्योंकि चोला पहले कितनी बार आते थे, दिल्ली के आसपास के लोगों ने तो कितना संघर्ष किया, ये आप ध्यान में रखिए। वसुदेव सुतं देवं चारुतमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमार खापेकर, सिंधु महाविद्यालय में वनस्पति शास्त्र का प्राध्यापक हूँ। मैडम, in your lecture you have quoted that in 1968 कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ जो है, उन्होंने उनके थ्रू या उनके पास उस वक्त 3 एकड़ जमीन ईदगाह के पास, ऐसा मुझे पता चला। तो इट इज नॉट माय क्वेश्चन, इट इज माय सबमिशन कि जब अभी प्रेजेंट ईदगाह के पास 3 एकड़ जमीन जो है वो ईदगाह कब बना, ये क्वेश्चन मार्क है। तो मेरा ये सबमिशन है कि हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग से ईदगाह कब बना इसका पता लगा सकते हैं, और मुझे लगता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये काम कर रही है। तो जो अभी क्वेश्चन है कि ईदगाह कब बना और अभी ईदगाह के पास 3 एकड़ जो जमीन है, तो हम लोग इस तरीके से साइंटिफिक वे से भी प्रूव कर सकते हैं कि आपने तो बहुत सारे तथ्य अभी हमारे सामने प्रकट कर दिए, बड़ी बड़ी डायग्नोस्टिक के नाम लेकर कि वहां से लेकर आज तक हमारे पास ऐसे बहुत सारे सबूत है कि मथुरा में जो जमीन है वो हिंदुओं की है, यहाँ पर कृष्ण का जन्मभूमि मंदिर बना है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग और ऐसे कई और साइंटिफिक वे से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि वहां पर कृष्ण का ही स्थान था। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आपकी नियत होनी चाहिए ना, सच जानने की नियत होनी चाहिए। अब ये जो 1968 में, मैंने कहा कि मेरे पास ये जानकारी नहीं है, लेकिन कोर्ट में
मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया है विष्णु जैन ने, जिन्होंने कहा है 1968 में समझौता हुआ था और उस केस में उन्होंने नापी है जमीन कि यहाँ से इतनी दी है, यहाँ से इतनी दी है, यहाँ उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं कोर्ट में कि ये जो समझौता है, समझौते में लिखा गया है कि नॉर्थ से इतनी जमीन देंगे, साउथ से इतनी जमीन देंगे, ईस्ट से, वेस्ट से। अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि भाई, लेकिन निर्णय कौन करेगा? ये तो आप और मैं नहीं कर सकते ना। जिसको हल ढूंढना है वो ही करेगा। बट दिस इज द कोर्ट that the case that is being filed in court specifies the exact measurements of the land that has been sold. कटरा केशव देव के 3.3 acres कहाँ से लिए गए हैं उसमें स्पेसिफाइड है। It is available, it will be available on Google also. 1968 का agreement ढूंढिएगा, क्योंकि that agreement the lawyer has put in public domain. So all of you can look at that case that he has filed and is given, because अगर ये कटरा केशव देव है तो यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना। It's not from, it is consolidated land दिया है ना। तो ये अब ये वो क्या मजबूरी थी? अब इसमें I just want to add one thing. अब ये जो समझौता 1968 में किया है, जो लॉयर जिसने केस फाइल किया है उसका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें बहुत रोल था और उन्होंने नाम दिए हैं। कौन है उन्होंने? एक तो डीपी मिश्रा है जिनका नाम उन्होंने दिया है। We know that DP Mishra was the chief minister of Madhya Pradesh. And another person whom he has mentioned is a Congress Rajya Sabha member who was later governor of Bihar. तो उन्होंने लिस्ट दी है कि सेवा संघ के कौन अधिकारी हैं। It is not, मतलब मेरे को तो शॉक लगा। I did not know about this 1968 agreement कि अपने आप तुमने 3 एकड़ जमीन भाई किससे पूछ के दी है? ये समाज की है ना, हिंदू समाज की है। तो आपको करता था जी जी ऐसा हुआ कि आपका घर में किसको दे? बिल्कुल। और क्यों? आपको मजबूरी क्या थी? मेरा घर क्यों दिया? और वो 1000 साल में उस घर पे बैठे। That is the best part. One question, मीनाक्षी जी, जैसे आपने मेंशन किया कि जो मंदिर डिस्ट्रक्शन का जो कांड जो मध्यकाल ज्यादा था आफ्टर मेजरली आफ्टर इस्लामिक इन्वेजन, बट ऐसा नहीं है भारत में, तो उसके पहले भी ग्रीक्स आए और काफी आए हैं। तो दोनों या जो प्रकार के इन्वेडर्स हैं उनको आप कैसे रेट करते हैं? क्योंकि वो उसके पहले में मध्यकाल के पहले जाता तो इतना डिस्ट्रक्शन का नहीं सुना जाता है, बिल्कुल मिलिट्री वॉर का ज्यादा सुना जाता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे रोहन ने कहा कि मध्यकाल से पहले भी भारत पर आक्रमण हुए और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के कुछ अंश पर विदेशी लोगों का राज रहा, जैसे कि बैक्ट्रियन ग्रीक्स, शाकास, वेनिस। तो इन सब का हम नाम सुनते हैं, लेकिन जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनमें से कोई विदेशी वंश या शासक नहीं था जिसने अपना धर्म या अपनी सभ्यता इस देश के लोगों पर थोपने का कोशिश की, बल्कि उन्होंने सब में भारत की संस्कृति या सभ्यता का कुछ अंश अपनाया। अब जैसे कि बैक्ट्रियन ग्रीक्स आए, तो बैक्ट्रियन ग्रीक्स में सबसे प्रसिद्ध शासक है मिनांडर, या जिनको हम मिलिंद बोलते हैं। अब हम उनको क्यों याद करते हैं, कैसे याद करते हैं? क्योंकि उस समय एक पुस्तक लिखी गई, मिलिंद पाल, द क्वेश्चंस ऑफ किंग मिलिंद। तो किंग मिलिंद भारत में भ्रमण किया और बहुत सारे धार्मिक संतों वगैरह से उनका वार्तालाप हुआ और उसके बाद वो
एक monk को मिले नागसेन, और नागसेन से जब उन्होंने बहस की तो नागसेन ने उनको पराजित कर दिया और फिर वो बुद्धिज्म से आकर्षित हो गए। एक और उदाहरण लूंगी हुंस का। हम सब जानते हैं कि भाई हुंस खूंखार थे, जहां भी जाते थे जलाते थे, मारते थे। और भारत में सबसे प्रसिद्ध हुंस शासक थे मिहिरकुल। और मिहिरकुल का भी यहाँ पे भी ये उनके बारे में कहा जाता है कि भाई बहुत खूंखार शासक थे। लेकिन ग्वालियर फोर्ट के पास अलेक्जेंडर कनिंघम को एक शिलालेख मिला, और वो शिलालेख कहता है कि शिव ने इन गर्व मतलब इतने प्राउड रूलर का भी सिर झुका दिया। और वो शिलालेख से ऐसा लगता है कि मिहिरकुल ने भी शैविज्म धर्म अपनाया। लेकिन ये जो कहानी है ये मध्यकाल में नहीं, ये कंटिन्यू नहीं होती, क्योंकि मध्यकाल में जो शासक आते हैं उनको अपने धर्म का प्रचार करना है, यहाँ की सभ्यता पर वार करना है, और लोगों के साथ जो जो क्रूरती है वो सब हम तो याद भी नहीं रखते कि भाई कुषाण कौन है। भाई मेरे बगल में बैठा है कुषाण है कौन है, क्योंकि वो इस संस्कृति और सभ्यता में इतने अधीन हो गए कि हमको तो हम पहचान भी नहीं सकते। लेकिन जो मध्यकाल में आए उनके बारे में हमारे दिमाग में अभी भी उनके बारे में जो पिक्चर है, क्योंकि हमने वो भुगता है, हमारे दिमाग में अभी भी है कि भाई ऐसा हमने इतना हमने सहन किया है, अभी भी डर है। So there is a difference between the invasions of the early period and the invasions of the medieval period. Good question. नमस्कार, मैं आह्लाद सदाचार मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और व्यवसायी हूँ। मथुरा के विषय में जो वामपंथी इतिहासकार है लेफ्टिस्ट, वो ऐसे कौन से प्रोमिनेंट झूठ बोलते हैं कि वो नैरेटिव बनाते हैं अलग अलग, तो ऐसी कौन सी चीज है और उसको कैसे डिफेंड किया जाए, उसके बारे में हमको कैसी जानकारी हो, उसके बारे में कुछ कहें तो अच्छा। This is a very very important question. मैं ये कहना चाहती हूँ कि अयोध्या पर जब अयोध्या का वाद कितने समय तक चला, भारत के स्वतंत्रता के उसके पहले भी था बट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी चला, तो अयोध्या में वामपंथी इतिहासकार उन्होंने एक के बाद एक झूठ बोले, जो झूठ इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इनके खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किए। कोर्ट्स ने कहा कि आप हमारी मदद करने आए थे, आप हमारे को मिसलीड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो अयोध्या उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट केस था, क्योंकि उनको था कि हमको ये केस नहीं हारना। और जब वो हार गए और उनका रोल आ गया, तो उसके बाद अभी मथुरा पे वो कुछ कह नहीं रहे, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि 1968 में जब समझौता हो गया है, आप इस मुद्दे को क्यों उठा क्योंकि अभी इस केस की कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई एंड अयोध्या के बाद अब उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने, अब मेरी किताब जिसमें मैंने ये सब कुछ लिखा है, किसी एक वामपंथी का एक भी कमेंट नहीं है। बस सिर्फ वो ये बोल रहे हैं कि 1968 में जो भी एग्रीमेंट हुआ, दो पार्टीज के बीच में हुआ, आप बीच में क्यों आ गए, आप ये मुद्दा क्यों उठा रहे? नंबर क्वेश्चन। आप पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग मैम, मैं प्रतीक सिंह हूँ और मैं सिपाही लॉ स्कूल से लॉ कर रहा हूँ। और अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि जो विवाद है उसको देखें तो अभी जो लड़ाई है वो लीगल लड़ाई है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1991 में
जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया उसका जो सेक्शन 4 था उसका क्लॉज 1 कहता है कि 1947 के बाद जो भी वर्शिप की जो भी प्लेस होंगे उनको चेंज नहीं किया जाएगा, जहां पे रहेंगे वहीं पे रहेंगे। उस समय पर उसमें साफ लिखा गया कि एक्सेप्ट अयोध्या। हाँ, तो क्या उस समय हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ पर जोर ना डालते हुए हमारा केवल फोकस अयोध्या पे था और इस वजह से हमने उसको एक्सेप्ट करा? और क्या आज हम उसी चीज को भुगत रहे हैं कि केवल उस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से मथुरा सिविल जब शूट हुई तो वो भी डिसमिस कर दी गई कोर्ट के द्वारा और अभी भी उसी के ऊपर सारा डिस्प्यूट चल रहा है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में किसी ने कहा भाई जैनों के ऊपर जो अन्याय हुआ है उसका क्या? एक आपने अयोध्या तो माफ कर दिया, लेकिन जैनों की तो भूमिया नहीं थी, उनका कुछ नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक लॉयर है, आई थिंक हिज नेम इज अश्विन उपाध्याय, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, he has filed a case saying that what about the injustice done to Jains, Buddhists, Shaivans and so many others. So Supreme Court has said yes, we will look into that, but when they look into it, we don't know. Now why did Hindu society accept the 1991? क्योंकि उस टाइम सिचुएशन was so great, हमको ये भी नहीं पता था कि अयोध्या मिलेगा। उस टाइम हमको ये भी नहीं पता था ना कि अयोध्या मिलेगा, तो हमने कहा चलो इसको तो क्योंकि डिस्प्यूट ऑलरेडी था, तो ये जो दो केसेस थे इनमें तो कोर्ट मथुरा की तो कोर्ट की सुनवाई अभी 2021 में हुई है ना, एंड वी डोंट इवन नो हाउ लॉन्ग द कोर्ट विल टेक। आई एग्री विद यू, बट आई थिंक इट वाज बिकॉज़ वी वर सो डिसअपॉइंटेड दैट वी विल नेवर गेट जस्टिस। तो हमने सोचा कि भाई वो मिल रहा है कुछ तो मिले। Yes, yes, absolutely, absolutely. मैं प्रदीप माहेश्वरी, मैं यहाँ विदर्भ से बिलोंग करता हूँ। यहाँ की कंप्लीट हिस्ट्री जो विदर्भ का खास करके इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर काफी मेरा इंटरेस्ट है। मेरा ये कहना है कि जैसे मथुरा के ऊपर आपने इतना काम किया है और इतना अच्छा उसका विश्लेषण बहुत पुराने समय से आपने किया है, उसी तरह से कुछ प्रमाण हमारे यहाँ भी मिलते हैं कि कृष्ण भगवान का हमारे विदर्भ से भी कुछ संबंध रहा है, खास करके रुक्मिणी से। हाँ, खास करके रुक्मिणी जी का जो मायका है या रुक्मिणी जी का जो है वो यहाँ पर उसके काफी प्रमाण है हमारे पास। और विदर्भ का भी बहुत बड़ा पुराना इतिहास है जहाँ पर श्री राम, श्री कृष्ण और हमारे पास बहुत सारे ऐसे पुराने, बहुत सारे ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे फोर्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। और खास करके हमारे यहाँ पे कभी हमने थोड़ी दिन पहले रामटेक में कुछ हमारे यहाँ कुछ एक्सकेवेशन में एक पूरा का पूरा शहर निकल के आया है, पूरा का पूरा शहर, जिसको हम हमारी संस्था देवेंद्र जी भी हमारे साथ है उसमें, जिसमें हम उसको कोर्ट से बाकी सब जगह से वितरण कर। तो हमारा कहना है कि आपकी इस मुहिम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, अब आपने तो इतना काम किया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको भी थोड़ा आप नहीं, मेरी एक बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आपके पास इतनी सामग्री है और आप यहाँ से हैं, तो जो अथॉरिटी आपके पास होगी वो मेरे पास नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे इतने लोग हैं, 2-4 बच्चों को आप इकट्ठा करिए, वो सामग्री उनको दीजिए, एक पेपर या कुछ तो प्रकाशित कीजिए, क्योंकि पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो फोटोग्राफ्स हैं, चाहे मोनोग्राफ क्या 50 पेज का हो और रुक्मिणी का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लोकल लोगों को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक आदमी दिल्ली में बैठा हुआ है, उसको आप जैसी नॉलेज कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप यहाँ के हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक सम वॉलंटियर्स फ्रॉम दिस क्राउड, जो आपके पास एविडेंस और फोटोग्राफिक एविडेंस बहुत है। So we just give it to them, it will be a real contribution, because we are all interested in the new generation of our culture and civilization. So whatever we can do, we should do at our level. Very good. मीनाक्षी जी, आपकी पुस्तक सती प्रथा पे आपने, मैं नाचू सती को छोड़ो अभी के बारे में, मैं सती नेक्स्ट पहले मथुरा को तो ले लें। Good evening to everybody. My name is Tejas Patelia. मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन था, rather a doubt, कि जो 1967 का आपने पूरा मैटर समझाया, उसमें जो जैन ने केस फाइल किया था, was nowhere a party to it, right? There were only 2 parties.
एक ईदगाह वाली पार्टी थी and another one was from कृष्ण जन्मभूमि. हाँ. So why did this person, the giant person party came into court and the court actually handed over the 3-acre land to it? नहीं, you are confusing. Let me just clarify. 1968 में एग्रीमेंट जैसे आपने कहा 2 पार्टीज के बीच में था, सेवा संघ एंड ईदगाह पार्टी. उसमें कोई लॉयर इन्वॉल्व नहीं था. उन्होंने आपस में समझौता किया, रिटन समझौता है. ये वर्बल समझौता नहीं है, रिटन समझौता है. That you can check. अब 2020 में एक यंग लॉयर विष्णु जैन ने फाइल किया है कि ये मेरी एंसेस्ट्री के साथ क्यों खिलवाड़ किया. Vishnu Jain was not involved in the 1968. That was between Idgah and temple. Vishnu Jain को अब ये पता चला है एग्रीमेंट के बारे में, तो उन्होंने कहा ये क्या मजाक है. भाई आप कौन है कि हिंदू समाज का आप 3 एकड़ दे दें? आप कौन है? ये तो विष्णु जैन ने हमारी जानकारी में ये लाए. You know? Hello, my name is Dr. Ravi Khangai. I am assistant professor of history in IIM Nagpur University. When Hindus claim that their temples were destroyed by the Muslim invaders, the counter discourse comes from the leftist and neo-Buddhist side that before Islamic invasion, Hindus have also destroyed the Buddhist temples. What will be your take on it, and if there is any serious academic work that is done on it? I am searching for it, but I did not get it so far. So the serious academic work is like here. Flight of Deities. This is my book, and this myth that Hindus attack Hindu temples, this was actually created by Marxist historians to reduce the gravity of the Islamic attack on Hindu sacred sites. So medieval period से पहले और मध्यकाल में जो उदाहरण दिए जाते हैं उनको मैंने एग्जामिन किया है और मैंने कहा, मैंने ये ढूंढा है कि जब एक हिंदू राजा एक अपने शत्रु हिंदू राजा पर आक्रमण करता था, आक्रमण तो होते हैं, लड़ाई करते हैं, तो वो जो हिंदू राजा है वो उस एनिमी के किंगडम से जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इसकी सबसे ज्यादा पूजा होती थी उस मूर्ति को अपने राज्य में लाया. उसको तोड़ता नहीं था, ना उस मंदिर को तोड़ता, अपने राज्य में लाकर उस मूर्ति के लिए एक विशाल मंदिर बनाता था और वहां पे उसकी पूजा करता था. मैं एक उदाहरण देती हूँ. कृष्णदेवराय हमने सबने तो उन्होंने उड़ीसा पर आक्रमण किया और वहां से उस राजा जो एक विष्णु कृष्ण की मूर्ति पूजा करते थे उसको वो ले आए अपने राज्य में. हम भी अगर आज भी आप जाएं तो वहां पर आप देखेंगे कृष्णा टेम्पल जो कृष्णदेवराय ने बनाया था और उस मूर्ति को जो उड़ीसा से लाए थे उसको आदर से वहां पे स्थापित किया था और वहां पे उसकी पूजा वगैरह करवाई थी. और ये कैसे कह सकती हूँ मैं कैसे करूँ? तो क्योंकि मंदिर की दीवार पर उनका शिलालेख है कि मैं इस मूर्ति को वहां से लाया. सो दिस इज. अब किसी ने जब मेरा शुरू हो रहा था किसी ने कहा पंढरपुर, किसी ने पंढरपुर के बाद. अब पंढरपुर हम सबको पता है कि महाराष्ट्र में कितना इम्पोर्टेंट सेंटर है. आपको शायद पता नहीं है कि मध्यकाल में ये डर था कि पंढरपुर पर आक्रमण होगा, तो पंढरपुर की जो मूर्ति थी उसको वहां से हटा लिया गया. अब कहाँ रखा था? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पंढरपुर की मूर्ति विठोबा की भी विजयनगर ले गया और अनेक लोकप्रिय गीत हैं अभी भी मराठी में और वो कहते हैं कि भाई अब हम पंढरपुर को अपने विठल को अपने वापस आओ, विठल वापस आओ. सो
ये नहीं कह, कृष्णदेव ने ये नहीं कहा कि विठल की मैं नहीं पूजा करता तो मैं इसको डिस्ट्रॉय करूं, इसको अपमानित करूं मूर्ति को। They all share that same sacred tradition. अगर मैं जैन हूं तो मैं विष्णु की भी पूजा करती हूँ। ये तो है नहीं कि मैं किसी विष्णु मंदिर में जाकर वहां पे कुछ गलत काम करूंगी। आप पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं, 6 महीने पहले 4 यंग मैन वो एक मंदिर में घुस गए और मंदिर के परिसर में उन्होंने नमाज पढ़ी। ये तो सब जगह है। अब मैं तो किसी मस्जिद में जाके अपने जैन धर्म के ग्रंथ, क्योंकि हमारी सभ्यता अलग है और हम सब, चाहे हम विष्णु भक्त हैं, शिव भक्त हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, we all share the same sacred tradition. So if you want to see the examples, you can just see 5-6 pages in this first. Please tell the name of the book. This is my book, you can see it here. The book name is Flight of Deities and Reconstruction of Temples. And he has it, you can borrow from him. It's also present on your booklet, Flawed Narratives. Great ma'am, myself Vipul Kashyap, B pharmacist to स्वयंसेवक भी। सुन्नी वक्फ कोर्ट कूद गए इस केस में, आपको भी पता होगा। अश्विनी शास्त्री जी ने जो केस डाला था मथुरा में, वो तो एक्सेप्ट कर लिया। हम किसी डिबेट में जाते हैं पॉलिटिकली, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के स्पीकर से हम इस टॉपिक को या कोई और मस्जिद के टॉपिक को डिफेंड कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि कुल 1200-1300 मस्जिद तो यूपी की है या फिर महाराष्ट्र की, तो वो सिर्फ हमारे अंडर ही आती है, हम ही उनका मेंटेनेंस एंड रख रखाव करते हैं। तो उससे हम बचे कैसे और उसे डिफेंड कैसे करें? देखिए, जो मस्जिद वर्जिन लैंड पे बनी है उनके बारे में हम कुछ कह नहीं रहे, ठीक है ना। हम ये नहीं कह रहे कि भारत में मस्जिद नहीं बननी चाहिए, ये हम नहीं कह रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हमारे पवित्र स्थानों पर उनको तोड़कर बनाए हैं और जिसका सबूत हम दे रहे हैं, उनके केस को एग्जामिन करो। अब विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जो ईदगाह है, पीछे की दीवार तो हिंदू मंदिर की दीवार है ना, इसमें कोई विवाद नहीं है। अब मथुरा में मैंने आपको इतने शिलालेख का विवरण किया है, जहां पे सबूत है उसको आप एक्नॉलेज तो करिए। आपने तो ये कहा कि अयोध्या में भी कोई मंदिर नहीं तोड़ा था, उन्होंने कहा था कि साफ भूमि थी उसके ऊपर बाबर ने बनाया, लेकिन वो तो गलत निकला। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर हमारी समाज को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, हम केवल पास्ट में नहीं रह सकते, तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे? जो हमारे पुराने घाव हैं उनको तो हील करना है ना। हील कैसे करेंगे? आप चोट को कैसे उसको ठीक करते हैं? जो हुआ है उसको सामने लाइए, जो सबूत है उसको रिकॉर्ड कीजिए, फिर उससे हमको भी शांति मिलेगी, उनकी आत्मा भी को शांति मिलेगी। एटलीस्ट रिकॉर्ड तो होना चाहिए। अब तो वो कह रहे हैं कि हमने कुछ तोड़ा नहीं। तो रेकंसिलिएशन होता है कि आप एक्नॉलेज कीजिए कि भाई ये गलती हुई, हमें नहीं की, किसी ने की, लेकिन एटलीस्ट एक्नॉलेज। We are not saying that there should be no masjid. We are saying masjids which are proven to be on temple land, please consider or at least accept that they were on temple land. Isn't it? अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, just take 2 minutes. अब सोमनाथ के बारे में कहा कि सोमनाथ के बारे में कितनी बार टूटा और जब अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर सोमनाथ का बनाया, तो आपको पता है कि उस मंदिर की क्या विशेषता थी? उस मंदिर की विशेषता ये थी कि जो शिवलिंग है वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होगा। हमेशा जब हम मंदिर में जाते हैं तो जो मेन मूर्ति है वो सेंटर में ग्राउंड फ्लोर पे होती है। अहिल्याबाई होलकर ने एक नीचे बेसमेंट बनाई
और बेसमेंट ऐसे बनाए कि 2 आदमी से ज्यादा एक टाइम नहीं जा सकते, और उस बेसमेंट में शिवलिंग रखा। जब उन्होंने मंदिर बनाया तब तो मुगल राज था नहीं, लेकिन भय डर कोई आक्रमण हो सकता है, तो आपने, और उत्तरी भारत के कितने टेम्पल्स हैं जो आज भी आप फोटो देखें तो एक आदमी नीचे जा सकता है एक बार। क्यों? क्योंकि सारी सेना एक बार में नहीं जा सकती ना वहां। तो ये हमारा इतिहास है। आप प्लीज इस इतिहास को मानिए। आप ये मानिए कि हमारे साथ ये हुआ, ये मत कहिए कि हमारे साथ कुछ नहीं हो, आपस में झगड़ते थे। ये तो इतिहास का मजाक उड़ाना है। If we want to move ahead, we have to come make peace with our past and to accept। अब देखिए विश्व में और कंट्रीज में भी तो रेकंसिलिएशन मिशन किया है ना कि भाई हाँ हम मानते हैं कि ये हुआ, लेकिन हमने ये नहीं किया। अब इसको रिकॉर्ड पे रखें, हर जुल्म जो हुआ है उसको रिकॉर्ड पे रखें और यहाँ पे कहानी खत्म करें। अब इमेजिन अहिल्याबाई होलकर एक उसके नीचे बना ली, and so many, but how the problem is I'm very happy that this so many young people have come, but how many young people know about this? अब जो young people है, I'm very happy that all of you have come, but in Delhi वो तो सिर्फ डिस्कोर्स और पार्टीज और मतलब इन द सेंस उनको कुछ पता ही नहीं है कि कौन है वो गजनवी और कौन नेवर। That is why it is very important to re-educate yourselves। मतलब मैं कोई by re-educating yourself means I include myself, क्योंकि मैं अपने आप को इतिहासकार कह रही हूँ और 2 साल पहले मुझे 1968 एग्रीमेंट के बारे में पता ही नहीं था। तो इसका मतलब है हमको हर वक्त अपने आप को शिक्षित करना। It is not going to end in 1 year's thing. We have to go on becoming aware of what happened to us. Namaste ma'am, this is Shaunak Kothekar. I am a practicing advocate here at Nagpur. Ma'am, my question is with respect to 2 different belief systems. If you the major differentiating factor between the Hindu cognitive framework as opposed to the Christianity and Islam is its focus on historicism and focus on historicism. Okay. So a lot of beliefs in Christianity and Islam are contingent upon occurrence of a particular historical incident, and the proof also has to be tangible. Yes. Whereas in the Hindu cognitive framework, the information is transferred in a pretty innovative and organic way, in a sense that the knowledge almost becomes intuitive. If you are brought up in a certain manner, those things almost become intuitive to you. Yes. And we may also refer to as civilizational memory. So I want to ask you, what is the significance of this? I mean, do historians give a lot of significance to historical memory? And if not, should in our context should we be? Indian historians give no importance because they are living in their own world. They have their own agenda to follow, so they are not interested. But the thing is that one important difference, that what you have said is correct, I agree with you, but one important difference between the traditions of the subcontinent and Islam and Christianity is that we do not distinguish between that you are a believer of Hindus or not a believer. We don't have the concept of kafir. So for me, you will not regard me as a kafir if I am not a Hindu. I will not regard you as a kafir if you are not a Jain. We are all one family. This concept of kafir does not exist in any tradition of the Indian subcontinent. So that is very, very important. Yes, the world is one family. अब कौन सा ये धर्म कहता है कि one is one family? Isn't it? They say कि हमारी family तो order. Absolutely. Yes. सदन को मेरा सादर पड़ा।
मैं हार्दिक कहना जोर से बोलो। सदर को मेरा सादर प्रणाम। मैं हार्दिक गहलाव रोहतक हरियाणा से हूँ। यहाँ नागपुर में सिम्बोसिस लॉ स्कूल का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न ये है भैया मैं भी रोहतक की हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब रामलला का आंदोलन चला था, जब एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था कि अयोध्या तो केवल झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है, तो क्या आपको लगता है जो भी संसद में सरकार है वो उसके प्रति, उस नारे के प्रति अभी उसके लिए काम कर रही है या नहीं? भैया इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। लेकिन अभी जैसे सितंबर 2020 में याचिका दायर की गई थी मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और अक्टूबर 2020 में वो खारिज कर दी गई इस बेसिस पे कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तहत ये खारिज हुई है। परंतु आप कह रहे हैं कि 1968 के बाद जो ढांचा है, जो विवादित ढांचा है, वो खड़ा किया गया वहां पे, तो उसके एक्सेप्शन हो गया उससे। एग्जैक्टली, बट ये मैं नहीं कह रही, ये विष्णु जैन कह रहे हैं और उन्होंने कोर्ट में सबूत पेश किया है। वो एग्रीमेंट 1968 का उन्होंने कोर्ट में पेश किया है। अब कोर्ट क्या फैसला लेगी, सुनवाई करेगी ना करेगी, और अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील किया जाए। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कहा है कि हम रिपील नहीं करेंगे, उन्होंने कहा हम एग्जामिन करेंगे। लेकिन आपको पता है कि कोर्ट में तारीख पे तारीख, अब कौन से जन्म में सुनवाई होगी? Last two questions. इसका मतलब है कि अभी हमको आंदोलन करना पड़ेगा। मैं केवल एक इसका उत्तर ये दूंगी कि अगर आंदोलन नहीं होता तो अयोध्या नहीं मिलता। Good evening, everyone. I'm Himanshu Thakur, and I'm from Symbiosis Law School, Nagpur. So I wanted to ask that, ma'am, what, like, you have gone through all the history and other things. So, ma'am, can you please tell me or inform me that what is the other side's motivation? Because we all can see that there is an orchestrated effort, and how their system is so perfect, and how can we make our system, you know, to compete with them in that language? That is because we are poor students of history. You know, we are poor students of history. We have forgotten our past. Look at the way our ancestors fought, and we have forgotten in one generation of Marxist history. 50 years of Marxist history have done this to us. For Jhajjar did not need anyone to tell him that Mahmud Ghaznavi came. He built the temple 100 years after Mahmud Ghaznavi. Were there any historians? But that commitment to your heritage, उनको तो किसी ने नहीं बताया कि आपका यहाँ पे मंदिर था, कोई वहाँ पे वामपंथी इतिहासकार नहीं थे। So the thing is, we have to learn our own history. As sir said, विदर्भ पे तो जहाँ-जहाँ आप हैं, जो आपको मिलता है, वो पब्लिक डोमेन में नेट पे डाल दीजिए, वीडियोस या कुछ भी डालिए। That is when the next generation is enlightened about their past, then only we have a glorious future. लेकिन अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, अच्छा मेरा क्वेश्चन है, आपने मेरे से इतने क्वेश्चन पूछे, भैया आप लोगों को मेरी जो टॉक थी उसमें दम लगा कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बेसिस में मंदिर मिल जाएगा? आम तो मेरा इंटेंशन नहीं था। I just have a follow-up question. very brief.
Like that, we have mentioned that historicism is basically a Christian Protestant thought that originated from, that is basically the form of history we get educated. So, should the government replace history with itihas, because it is a Sanskrit non-translatable, and itihas and history are completely different. Because itihas does not want to build a narrative. I agree with you, but I don't know what the government is doing in any case. If it is doing anything. So, as a historian, do you believe that itihas is more important than history? Because historicism does have a narrative. No, both are important. Both, if you have to fight a real battle, then you need history. But for the civilizational memory, itihas is what counts. Itihas for the civilization. My grandmother did not study history, but she knew that is itihas. The memory, the civilizational memory. But for modern debate, you have to have history. There's something, the federal government is doing something about the NCERT syllabus. जो गूगल का ज़्यादा बताया गया था. After the program, Thank you so much for such a patient hearing. Thank you. I request everyone to wait for the national anthem. Please be seated. So I guess the best takeaway from this particular session was, जो भी आपने आज सुना, आपकी जितनी भी study है, please put it on public domain. We have numerous followers on social media. If all of us start speaking out on social media, I guess that is the most powerful medium with which we would be able to reach the masses, and especially talk to the people, talk to the youngsters, as ma'am said, who are partying in discourse, and bring them here on our platform and ensure that they are also educated about the itihas enough to speak for our own history. So that was a wonderful session, and thank you ma'am for being here with us. I request Sagarji Midkari to please come on stage for a vote of thanks, followed by Rashtragan, and please be seated, just a moment. थैंक यू अंकिता. मेरे ख्याल से जो पिछले 2 घंटे थे, हम लोगों के सब स्पेलबाउंड थे. बहुत सारा इतिहास, बहुत सारा जो नॉलेज था वो पब्लिक डोमेन में भले ही है गूगल पे, लेकिन हम लोगों ने कभी एफर्ट्स नहीं लिए थे इतना सब पढ़ने के लिए. ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली, बट आई कैन से मैम कि आई हैव नोटेड डाउन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम स्पेलबाउंड. I guess we should have a standing ovation for ma'am. We should definitely have a standing ovation. जो 11th century में जज्जा जी ने एक inscription लिखा था, we owe him a lot because we have finally come to the terms कि हाँ, जो लोग एक सेट ऑफ हिस्टोरियंस जो है वो बहुत सारी चीजें जो है हमारा इतिहास जो है वो झुठलाते हैं कि ये हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं, ये सब रिकॉर्ड्स में है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं. एंड दैट these inscriptions are something which are with us, which says that this is what our civilization is, and we have been here since last thousands of years. So ये सारे जो चीजें हैं, जैसे मैम ने भी बताया कि हम लोगों ने हमारी चीजें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, नई जनरेशन ने आगे आना चाहिए. And this is what is, as Ankita has also said, this is what is our takeaway. And ma'am, thank you very much. On a very short notice, आप आए हैं नागपुर में. Ma'am is traveling within 24 hours back to her city. At this age and at Nagpur's scorching heat, she has accepted our invitation and she has come. Thank you very much, ma'am. And at the same time, I also thank on behalf of Team Manthan to all of you who have really come down on a holiday. Labor Day है, महाराष्ट्र दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने आपके बाकी सारे प्लान्स अलाइन करके आप आए हो. थैंक यू वेरी मच. आप ऐसे ही आपका स्नेह हमें देते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए. हर एक नए विषय लेके, नए थॉट प्रोवोकिंग थॉट्स और विषय लेके हम लोग आपके सामने आते रहेंगे. 2 साल के बाद इतना पूरा हॉल भरा हुआ देख के मुझे और हमारी टीम को बहुत खुशी है. ऐसा ही हॉल हमारा पूरा भरा रहेगा अगले महीने भी, अगले नए स्पीकर के साथ. और एट द सेम टाइम we will be doing something, as sir has also said,
कि इस पर्टिकुलर विषय को लेके यहाँ से हम लोग कहीं ना कहीं हम आगे पक्का जाएंगे मैडम, एंड वी विल गेट बैक टू यू ऑन दिस कि व्हाट वी हैव डन, दैट वी कैन प्रॉमिस ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर नागपुर. So thank you very much for all of you, and let us take up the Rashtragan. Jai